Requesting your presence, sir. Very warm welcome. He is here spearheading this lovely event. Star Connect Entertainment Private Limited presents Mass Parade Street 2022. Thank you so much. Okay, calling up the next guest, who is again a champion in it. Johan, requesting you all to please clap your hands for Mr. Deepak Chauhan. Ladies and gentlemen, also all my dear lovely bodybuilder fans out there, all the bodybuilder fans out there, those who are hearing me right now, we have one of the finest inspiration of fitness in the country right now. He is the first runner-up of Big Boss 13. Ladies and gentlemen, a model and an actor, ladies across the country. And also, if you guys would have seen his Instagram, I'm totally in awe with his Instagram. Ladies and gentlemen, please give it up for Mr. Asim Riaz. Thank you so much, sir, for paying your presence in this Mass Parade Street 2022 4th edition. Now, it's time to welcome a man who has always inspired the youth among the country. Ladies and gentlemen, he is an Indian film and television actor, the winner of third season of Big Boss, and yes, he carries mass in himself wherever he goes. Ladies and gentlemen, please call upon stage Mr. Windu Dara Singh. A big congratulations to the entire Mass Parade Street 2022 4th edition for having such lovely guests out there who are real role models in the country right now in terms of fitness, in terms of bodybuilding, in terms of how they inspire the youth and also all the people across the country. Please give it up for them. Come on, everyone. We thank you all for being here and extending your support towards the health and fitness industry. Also, ladies and gentlemen, we have another guest with us. And I would like to call on stage the president of Greater Bombay Bodybuilding Association, Mr. Ajay Khandwalkar. Ladies and gentlemen, please give it up for Mr. Ajay, sir. The president, Greater Bombay Bodybuilding Association, our fifth guest of this conference. Thank you so much, dear guest, for your precious time. You're here to, entertain. You're here to support. You're here to shower your love for fitness as you guys have always done. Now it's time to show some love to Mass Parade Shri 2022. It is the fourth edition. From the last three editions already, it has gained a lot of support from the bodybuilders across the country. And this time, Mumbai and lots of places in Mumbai, the bodybuilders are ready. Some of them are here. Some of them will be seen on the 6th of March. I'm sure you guys are excited. I'm excited. The people, those who will be watching, are excited. Ladies and gentlemen, I would also like to bring it to your notice that we have an NGO that is Shant Bharat Surakshit Bharat, which is giving scholarship to 3 bodybuilders in Parel Shri 2022 in terms of free protein, a diet plan, and a consultation for 1 year. And that indeed is a great thing. So come on, everyone, give it up for NGO Shant Bharat, Surakshit Bharat. Wow. Wonderful. So yes, Mass Parel Shri 2022 is open. We have our guest with us. So let's start with Deepak sir first. Deepak sir, I would like you to please speak ahead for the event today, Mass Parade Street 2022. You have been associated with it since very long, and yeah, Star Connect Entertainment Private Limited is here to make people aware what this event is about all be. परेल श्री 3 सीजन से होते आ रहा है. हेलो हेलो. परेल श्री 3 सीजन मनीष अडलकर जी ने किया है. अभी हम जॉइंट हैंड्स हुए हैं साथ पे और इसे नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का हमने बहुत अच्छे लेवल पे ट्राई किया है शायद. और आसिम और सर का जो सपोर्ट मिला है हमें, क्योंकि मेरे हिसाब से जो आइकॉन है मेन जब स्टार्ट हुआ है तो दारा सिंह जी सर जो थे और उनके जो सन है, क्योंकि मनीष सर बजरंगबली को बहुत मानते हैं, तो मेरे दिमाग में ये था कि सर का अगर सपोर्ट मिल गया तो एक बहुत बड़ा आशीर्वाद हमको पहले ही मिल जाएगा इस पर. तो वो हिसाब से स्टार्ट हुआ है. एंड हम बहुत जल्दी से एक जैसे अभी ये सिर्फ मुंबई के लिए हम कर रहे हैं, नवी मुंबई मुंबई एक इस लेवल पे लेके जा रहे हैं. परेल श्री सिर्फ पहले परेल तक था, तो 2 साल की जो गैप हुआ है वो गैप की वजह से हमने प्लान किया ये साल की जब हम साथ में जुड़े तो पूरे मुंबई को ओपन करते हैं. एंड अक्टूबर नवंबर में वी आर प्लानिंग कि ये पूरे इंडिया में लेके जाए हम, और एक मास मिस्टर इंडिया बोल के हम लोग अनाउंस करने वाले बहुत जल्दी, और वो भी एक इवेंट बहुत जल्दी सबके सामने आएगा.
a big event. Thank you so much, Deepak sir. So he has already announced another event in front of everyone. 6th of March, you'll be witnessing Mass Parade Street 2022. More events coming already on the way. Requesting Mr. Manish sir to please take over the mic and speak about the event. लास्ट जो परेलसी हुआ था वो 2018 था, उसके बाद कोविड आया और कोविड में काफ़ी लॉसेस हुआ, पूरा फिटनेस इंडस्ट्री, जिम्स बंद थे, तो ऑफ कोर्स बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री को तो पूरा ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गई थी। उसके बाद मुझे दीपक सर मिले और इनका जर्नी में बता रहा हूँ कि ये 140 थे, 140 केजी थे, तो ऑलमोस्ट 6 मंथ में इन्होंने 45 केजी कम किया। तो उसके बाद उनको पता चला कि ये जो बॉडी बिल्डिंग गेम है इसमें कितना सैक्रिफाइस है, मीन्स जो अच्छा फूड है वो खा नहीं सकते, बॉयल फूड खाना है, लिमिटेड खाना है और एक्सपेंसिव गेम है। और इसमें ऐसे कोई रिच क्लास तो कोई बॉडी बिल्डिंग करता नहीं, जो मिडिल क्लास है वही ज़्यादा करके ये गेम में है। तो ये इन्होंने मुझे सजेशन दिया कि ये गेम को हम लोग प्रमोट करके अच्छा बड़े लेवल पे करते हैं और ऑलमोस्ट हम लोग आ गए हैं। तो ये नेक्स्ट लेवल परेलसी मेरे को लगता है इंडिया की सबसे बेस्ट और सबसे बड़ी कंपटीशन है जिसमें इतने बड़े बड़े प्राइज़ है। फर्स्ट प्राइज़ हम लोग ने बुलेट रखा है और मेन फिजिक का जो फर्स्ट आएगा उसको आईफोन 13 प्रो साहिल खान ने दिया हुआ है। काफ़ी सारे स्पॉन्सर्स है, बहुत बड़े बड़े प्राइजेस है। सो थैंक यू गाइस। So that was Manish sir for all of you, and the prizes which he announced, I guess every bodybuilder loves Bullet. So you know, it is their shine, it is their pride, and yeah, yeah, of course. And the second prize being iPhone 13. Who won't like that? Give your best, guys. Participate in the 6 March 2022. I'm sure you're gonna represent country across international stages as well. But for now, it's Mass Parade Street 2022 for all of you. Going forward, we have one of the finest youth icons in the country with us. Asim sir, like you to please speak something for the event. Hello. All right. My name is Asim Riaz, and firstly, thank you so much for having me here. It's a pleasure to be the part of this event. I think COVID ki wajah se, we suffered a lot, especially the fitness industry. Gyms band ho gaye, bodybuilding is something you need consistency, you need a vision, you need a focus. But gym ke bagair, it's nothing. So abhi, I think Parel Shri has come up after 2 years, right? After 2 years, this event is happening, and a lot of bodybuilders have come up, and they're gonna do this. So I'm really happy to be the part of this event. And main thing I want to tell you guys that fitness industry needs attention. That's what I'm trying to say. It needs attention because और मैं उन सभी को मुबारकबाद देना चाहूँगा जो यहाँ पे मतलब जो अभी परसों हो रहा है शायद से 6 को हो रहा है कि they participating because it requires a courage, it requires a lot of vision, consistency to be there. So for me, you guys have already won, you know what I'm saying? And I hope Parel Shri comes up with this thing next year and the very next year. So we need your support. We need everybody's support. You know what I'm saying? And because fitness industry, I want to light up कि हमने COVID में we had this immunity booster. तो immunity booster उनको लगा कि because what I'm trying to say is कि fitness, if you are fit, you don't need an immunity booster. You know what I'm trying to say? Because मुझे भी COVID हुआ, but God knows that I didn't have that side effect that I had to be on antibiotics, I had to be at a lot of things. No, I was at a very normal side effect, which was जो सबको हो रहा था, but not the way it should be. तो मैं यही बोलूँगा कि अगर आप if you have a job, if you're a doctor, engineer, if you are anything you're doing in your life, but you need to take out at least an hour for yourself, because because the problem in the youth what I'm facing is they're not able to believe in themselves that they can do it. Before they want to do it, they think it's a task. They think कि इसकी body ज़्यादा है तो मैं ये नहीं बना पाऊँगा. Don't do it, because you're not making body for him. You don't want 6-pack, 8-pack or any body like him. You have to be fit for yourself. Fit for yourself, आपकी अंदर आपकी the health I'm talking about. If I have 6-pack and sir has 8-pack, I don't want 8-pack. I want a better 6-pack. I will ask him because it's his. You know what I'm trying to say. So believe in yourself and think
and think it will happen. Because firstly, I want everybody whosoever want to step into fitness, you need to relax. It's not one day thing. It's not 2 day. It's not 6 months. It's not 1 year. I've been training since 10 years. And it's the same thing. Before coming here, I was in my parking and there was a thing. I did pull-ups. To be very honest, I'm like, okay, because I go to the gym in the morning sometimes. I'm like, okay, because I'm coming for the event, I want to be like, pumped up. I was doing pull-ups, so you have to find a reason. You have to find a reason. I remember I was from Jammu to Mumbai. I drove in my car. But literally, I was doing push-ups on the way, on the highway. I have things in my, in my trunk to, like I said, I find a reason. Find a reason for yourself to be fit. Find a reason to be healthy for yourself. Believe in yourself. That's the message. I want to give it to the youth. That's the message. I'm here to deliver. Believe in yourself and everything will fall in place. Thank you so much. Tagline is, I don't want to forget the tagline, guys. Tu ziddi hai, tu ziddi hai, to tu zinda hai. You know what I'm trying to say? Asim Riaz, I'm out. Superb, everyone. Come on, everyone. Please give it up for Asim, sir. And बहुत ही शानदार अंदाज में इन्होंने आपको फिटनेस के बारे में बताया. His journey has been amazing. We have seen him since quite long. He has been into fitness, and the way he said, he keeps all his utensils or utilities in the truck so that he can do push-ups, pull-ups wherever he wants to. And I guess that is important. We are here to spear up this Mass Parel Shri 2022, which is a competition. But yeah, it's not just a competition. It's a place, it's a platform given by Star Connect Entertainment Private Limited for all of you to prove yourself that you want this to be a part of your life. You want fitness to be a part of your life. And with that, I would like to give the mic to the man himself, who is one of the pioneers in the fitness industry. Ladies and gentlemen, please give it up for Vindu Dara Singh sir. Come on, everyone. So the mic is yours. सबसे I want to tell you all this कि the greatest instrument you'll ever own in your life is not some fancy car, some fancy house, anything. It's your body. The body is सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है हमारी body. आपको सबको समझना पड़ेगा कि ये लोग जो मेहनत करते हैं, hats off to them. It's not easy. हम सब ने भी की है, लेकिन इनके जैसे कंसिस्टेंटली की होती तो अभी भी बल्जिंग बॉडी होती. तो द पॉइंट इज के परेल श्री 2022 तो ठीक है, पर मुझे लगता है अगले साल ये पूरा इंडिया श्री श्रीमती होने वाला है. तो परेल से निकल के हम लोग जा रहे हैं फुल इंडिया, आई एम श्योर. बट हैट्स ऑफ टू यू ऑल. मुझे लगता है कि जितना भी हम बॉडी बिल्डिंग को इनकरेज करें वो कम है. सबको अपनी बॉडी को, या आसिम तो 1 घंटा बोल रहा था, मैं कहता हूँ आप लोग आधा पौना घंटा भी दे दें अपनी बॉडी को रोज. इट शुड बी लाइक आप पूजा करते हैं, आप दुआ करते हैं, वैसे ही आप बॉडी को भी इतना टाइम देते हैं, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी टू बी, आई एम सो हैप्पी टू सी सो मेनी स्पॉन्सर्स, बिकॉज दैट्स व्हाट यू नीड फॉर दिस काइंड ऑफ इवेंट. यू नीड टू ओपन योर हार्ट्स, you need to put in that money so that these kind of events take more, keep happening more and more often. बहुत सारे हमारे ट्रेनर्स हैं इंडिया के. जब हम जिम में जाते हैं तो देखते हैं बहुत सारे ट्रेनर्स हैं, और वो लोग सब कितनी मेहनत करके बॉडी बनाते हैं. Absolutely. वो सब 2 साल बहुत तकलीफ में उनने गुजारे हैं. वो बाहर भी नहीं जा पा रहे थे काफ़ी, जब तक ये लॉकडाउन चलते थे. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उनकी, एंड पता ही नहीं कितने मिलियंस लोग हैं इंडिया के अंदर जो बॉडी बिल्डिंग के साथ कनेक्टेड हैं, जिम्स के साथ कनेक्टेड हैं. तो वी नीड टू सपोर्ट देम. आई एम ऑल इन. जब भी मेरी ज़रूरत होगी, जहाँ भी मेरी ज़रूरत होगी, मैं वहाँ ज़रूर हाजिर होऊंगा. और आप सबको बहुत बहुत प्यार. रॉकेट परेल श्री, पूरा इंडिया श्री. डन. क्या बात है. और इस भारी आवाज के साथ बहुत ही भारी शुरुआत हो चुकी है. लेडीज एंड जेंटलमैन, बजोरदार तालियां हो जाए बिंदु सर के लिए. कम ऑन. थैंक यू सर फॉर ऑल द वर्ड्स. मेरे पास कुछ सवाल हैं खासकर दीपक सर को लेकर. दीपक सर, यू हैव बीन एसोसिएटेड विद दिस एडिशन सिंस सो मेनी 2022. आई वांट टू नो द थॉट प्रोसेस बिहाइंड दिस इवेंट. बेसिकली कब आपके जहन में ये बात आई? आप जिम में थे, आप पुलअप्स कर रहे थे, पुशअप्स कर रहे थे, आपने देखा बहुत सारे मेरे आसपास जो दोस्त हैं वो भी बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, चलो यार इसे नेक्स्ट लेवल पे ले जाया जाए, बिकॉज इट इज ऑलरेडी अ प्रोफेशनल स्पोर्ट. एंड आई एम श्योर दीपक सर वांट्स टू से समथिंग ऑन दैट. या नहीं, मैं इससे अभी जुड़ा हुआ हूँ. मैं मनीष जी को जानता हूँ, कुछ 1.5 साल हो गए अभी. 1.5 साल या 2 साल के आसपास होने आया अभी. सो जब ट्रेनिंग के साथ स्टार्ट किया मैं, तब देखा कि काफ़ी लोग, जितने भी ट्रेनर्स थे, जैसे अभी सर ने कहा कि जितने भी जिम ट्रेनर्स है वो आके पूछते, सर ये परेल श्री कब हो रहा है, सर ये परेल श्री कब होने वाला है.
तो मैं ट्रेनिंग के बीच में इनको पूछा था ये क्या है, कौन सा इवेंट है, तो बोले नहीं मैं एक बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन 3 साल से कर रहा था, अभी ये 2 साल का गैप आ गया कोविड में, लोग तैयारी कर रहे हैं, कुछ एक नेशनल इवेंट कोई होने वाला था फिर वो कैंसिल हो गया, तो स्पॉन्सर्स भी नहीं है। Right. तो मेरे को एक पे बैक टाइम मेरे को फील हुआ है कि कुछ मैं करूँ मनीष सर के लिए, क्योंकि मैं कहीं भी जाता था तो लोग मुझे पहले बोलते थे 140 kg इतना मोटा है, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में होके कैसे तुम क्रिकेट के इवेंट्स में है। सो मुझे अंदर से फील होता था ये सब मनीष की वजह से, तो किस तरीके से मैं इसको पे बैक करूँ अपने एंड से। Right. सो मुझे एक फील आया कि नहीं यार ये इवेंट के लिए लोग जितने ट्रेनर्स है, बाकी जो खुद सर है मेरे लिए तो मतलब मेरे गुरु है, सो अगर ये एक चीज़ सोच रहे तो क्यों ना, मैं इसी इंडस्ट्री से हूँ, इवेंट इंडस्ट्री से, मैं क्रिकेट टीम भी ओन करता हूँ, आई एम ऑल्सो एसोसिएटेड विद GT20 कनाडा, रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज। तो मैं सर ये क्रिकेट के जो जितने भी इवेंट्स है जो हमारे कंपनी से ही होते हैं, सो व्हाई नॉट कि मैं परेल श्री को एक बड़ा ब्रांड बना दूँ। Absolutely. एंड वो एक थॉट प्रोसेस मेरे माइंड में था। फिर मैंने मनीष जी को बोला अभी आप ये चिंता छोड़ दो, अभी ये मेरी चिंता है, आप मेरे पे ध्यान दो। मुझे नेक्स्ट ईयर में भी उतर सकूं, बस मैं घर पे उतरूंगा, स्टेज पे तो नहीं आऊंगा। Right. लेकिन इतना पक्का है कि हम लोग मास, जैसे मैंने एक नाम सोचा, मनीष अडविलकर सुपर स्क्वाड। Wow. ये मनीष अडविलकर सुपर स्क्वाड पूरे इंडिया में हम फैलाएंगे। ये मतलब एक मिस्टर इंडिया मास मतलब हम बनाएंगे, कंफर्म है। और नेक्स्ट ईयर मतलब ये पक्का थॉट मेरे दिमाग में आ गया है कि हम लोग अक्टूबर नवंबर में इस इवेंट को करेंगे और बिंदु सर हमारे साथ रहेंगे। अनाउंस कर दिया है सर ने, मनीष अडविलकर सुपर स्क्वाड, एंड व्हाट अमेजिंग नेम इट हैज बीन गिवन। अजीम सर सोच रहे मुझे क्यों भूल गया यार दीपक। और क्या जर्नी रही है दीपक सर की। 6 months ही सेट 45 kgs, राइट, 40 to 45 kgs। यहाँ साल भर लग जाते हमें 4 किलो कम करने के लिए, इन्होंने 45 कर दिए। अच्छा, 1.5 years. So big round of applause from him as well. That is why he is sitting here. And सर ने कहा कि मैं खुद नहीं उतरूंगा, तो उसका रीज़न ये भी है कि प्लेटफॉर्म देने वाले भी कुछ लोग होते हैं, एंड आई गेस उन्होंने प्लेटफॉर्म दिया है मनीष सर के साथ मिलकर, मास परेल श्री 2022 जितने बॉडी बिल्डर्स है अक्रॉस इंडिया उनके लिए। अभी फिलहाल मुंबई के लिए, इंडिया भी जाएगा, इंटरनेशनल भी जाएगा, वक्त दूर नहीं है दोस्तों, जज्बा बनाए रखिए, हमारे साथ बने रहिए। और हमारे बीच एक और गेस्ट है, लेडीज एंड जेंटलमैन, अजय सर, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ ग्रेटर बॉम्बे बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन। सर, आई वुड लाइक यू टू प्लीज स्पीक समथिंग फॉर द इवेंट। सबको मेरा नमस्कार। मराठी में चलेगा? जय महाराष्ट्र। मैं सबका इंग्लिश और हिंदी सुन लिया, तो बोला मराठी कोई बात करना ज़रूरी है। बाहर हम लोग से कोई पूछेंगे तो बोलेंगे कुछ बात नाही किया। सबसे पहिले मला सगळ्यात पहिलं अभिनंदन करायचं आहे मनीषचं। ते एवढ्यासाठी करायचं आहे, मनीषबरोबर त्याच्या संपूर्ण टीमचंही करायचं आहे, कारण आज ह्या 1.5-2 वर्षामध्ये ह्या सगळ्यांनी उदाहरणं दिली की काय परिस्थिती होती। मनीष सरांनी आणखी एक इंटरेस्ट घेतला आणि मोर्चाही काढला, जेलपर्यंत गेले, कोर्टापर्यंत गेले, पण आम्हाला कसाही न्याय मिळाला पाहिजे, हा सगळ्यात पहिला प्रयत्न मनीष सर, आमचे प्रभाकर कदम, एक चांगल्या टीमने हा प्रयत्न केला। आणि आज असं दिसतंय की ही इंडस्ट्री पुन्हा फॉर्ममध्ये यायला लागली आणि आज चांगले दिवस दिसायला लागले। याचं कारण मनीषसारखे लोक आपल्याकडे आहेत। आणि आज इथे सुद्धा जे बॉडी बिल्डर्स आप सब लोग ने बोला है, इथे सुद्धा जे बॉडी बिल्डर्स आलेत, हे सगळे पहिल्यापासून सर्वसाधारण कुटुंबातलीच माणसं। मनीषही आमचा त्यातलाच। मनीषला त्याच्या आईने त्याच्या फॅमिलीने सपोर्ट दिला, ही मुलं पुढे आली। आज आम्ही जी काही संघटना चालवतो, ही संघटना, या संघटनेला इंडियन स्पोर्ट्स अथॉरिटीची परमिशन आहे। त्यामुळे आमच्याकडे असलेल्या सगळ्या मुलांना गव्हर्नमेंटच्या जेवढ्या सर्व्हिस आहेत, प्रत्येक वर्षी 2-3 मुलांना ह्या सर्व्हिस मिळतात। इथे आलेली मुलं सुद्धा आता आहेत, त्यांना मुद्दाम तुम्ही आता बघा त्यांची कंडिशन कशी आहे। गेली 1.5 वर्ष वर्कआउट बंद असताना सुद्धा त्या मुलांनी रात्रंदिवस मेहनत केली आहे, कारण बॉडी मेंटेन करणं, जसं त्यांनी आता सांगितलं आसिमनी, की त्याचं ज्याला वेळ आहे ना, तो थांबणार नाही। आमचं नशीब, हा कोरोना गेला आणि आता सुरुवात झालेली आहे, पण आज आलेल्या मुलांचेही कपडे काढा, त्यांची बॉडी बघा। उद्या आम्ही मुंबईमध्ये ही स्पर्धा घेतो आहे। मनीषने ही 3 वर्षापूर्वीपासून जी काही सुरुवात केली, त्याला आम्ही सगळ्या स्पर्धा घेतो, पण आम्हाला दीपक सरांसारखी लोक मिळाली नव्हती। या फील्डला लोक क्रिकेटच्या मागे सगळ्यात जास्त पैसा घालवतात आपल्या देशामध्ये, पण ही जी मेहनत आहे, आता जसं बिंदू सरांनी सांगितलं, आपल्याला कधी आपलं शरीर, आपली बॉडी सांगत नाही माझ्यासाठी काहीतरी कर म्हणून। आपण फॅमिलीसाठी,
आपल्या कुटुंबासाठी सगळ्यांसाठी करतो. 12 तास 18 तास तुम्ही सुद्धा सगळे बाहेर फिरत असता, पण अर्धा तास स्वतःसाठी आपण देत नाही. तो द्यायला पाहिजे. सगळ्यांना बॉडी बिल्डर नाही व्हायचं आहे, पण लॉंग लाईफ जगलं तर पाहिजे. त्याच्यासाठी ते करा काहीतरी, कारण तुमच्या सगळ्यांकडे बघितलं असं वाटतं खाऊन पिऊन मस्त आहेत, बसलो तर आपल्याला उठायला होणार नाही अशी परिस्थिती आहे. आता मुंबई पोलीसमध्ये सुद्धा आमची जी मुलं गेले आहेत, तुम्ही काही बॉडी बिल्डर्सचे फोटो येतात नेटवर बघत असाल, त्यांना बघितल्यानंतर किती मोठा आरोपी असो ती मारायच्या आधी त्याला लघवी झालीच पाहिजे, सॉरी, पण तो तिथे ढिला पडला पाहिजे. माणसाची पर्सेंटेज अशी पाहिजे की कुठे गेल्यावर तो शोभला पाहिजे. आणि इंडियाने आज एवढी प्रगती केली आहे, आम्हाला ज्या मुलांसारखा सगळ्यांचा सपोर्ट असल्यामुळे एशिया आणि वर्ल्डमध्ये पूर्वी इतर कंट्रीज पुढे यायच्या, आता या महाराष्ट्रातनं मुलं पूर्ण इंडियातल्या मुलांना बाद करून एशिया आणि ऑलिम्पिकमध्ये आपला फर्स्ट नंबर गोल्ड घ्यायला लागले. हे कशामुळे? आज आम्हाला असे काही सपोर्टर लोक मिळायला लागले. आणि आज असं पाहायला गेलं तर क्रिकेटच्या मागोमाग सगळ्यात जास्त लोक जमतात ती बॉडी बिल्डिंगची स्पर्धा बघायला. आज आम्ही मुलींमध्ये सुद्धा फिजिक्स आणि ह्या स्पर्धा ठेवल्या आहेत. चांगल्या चांगल्या मुली आता यायला लागल्या. मेन फिजिक्समध्ये सगळ्यात जास्त मुलं यायला लागली, कारण त्यांना ॲड आणि पिक्चरमधनं कामं मिळायला लागली. याच्याने सगळं एकच दिसतं की तुमचं फिटनेस दिसलं की तुम्हाला सगळं काही मिळतं. आपल्या पॅकेटमध्ये किती पैशात त्याच्यापेक्षा तुम्ही उभे राहिल्यावर तुमची पर्सेंटेज पडते ना, त्यात तो लाखो रुपये कमवून जातो. त्यामुळे आपण सगळ्यांनी या शरीरयष्टीकडे लक्ष द्या आणि उद्या परवाच्या होणाऱ्या स्पर्धेला सगळ्यांनी पोहोचा, त्याची मजा घ्या. आणि मनीषला आमचा सगळ्यांचा आशीर्वाद आहे, आम्ही त्याच्याबरोबर आहोत. त्यांनी किती पुढे जावं, आम्ही त्याच्याबरोबर खांदा खांदा लावून उभे राहू आणि हा कार्यक्रम आम्ही कायम चालू ठेवू, अबाधित ठेवू. एवढं बोलून आपली रजा घेतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. बहुत बहुत शुक्रिया अजय सर, तहे दिल से मैं इनका धन्यवाद कहना चाहूँगा. सर ने यहाँ पर सबसे पहले भाषा का प्रयोग करते हुए सर ने बोला कि द थिंग इज आई नेवर ट्राइड फिटनेस. बेसिकली आई हैव होस्टेड मैराथन्स, आई हैव होस्टेड स्पोर्ट्स इवेंट, बट ऐसा हो जाता है ना कि मैं सिर्फ होस्ट करते रह जाता हूँ, खुद कुछ नहीं कर पाता क्योंकि मैं सिर्फ देखते रह जाता हूँ. तो मैंने आपको भी कंटिन्यूसली देखा है काफ़ी सालों से. सो हैज़ इट बिन एवर एनी इंसिडेंट इन योर लाइफ? आपकी जर्नी काफ़ी इंस्पायरिंग रही है. कभी ऐसा इंसिडेंट आया हो कि बॉडी की वजह से, फिटनेस की वजह से आपको कुछ फेस करना पड़ा हो, लाइक एनीथिंग रिगार्डिंग? अगर मैंने कुछ बॉडी की वजह से फेस किया है वो अच्छा ही किया है. एंड हूसोएवर आई एम टुडे, आई थिंक इट्स मी बीइंग फिट. मुझे हर चीज़ मेरी बॉडी ने दी है, बॉडी टू बी फिट. एंड आप जैसे बोल रहे हो कि अगर आप देखते हो तो फर्स्ट देखने से पहले आप अपने आप को देखो, देन यू डू इट एंड देन यू सी इट. मैं वही बोल रहा हूँ कि कुछ भी काम करने से पहले, आप किसी की हेल्थ पूछने से पहले अपना देखो कि आप क्या कर रहे हो. किसी को बोलने से अच्छा कि क्या हो रहा है कि आज की डेट में लोगों के साथ इतना घुल मिल गए हैं, मतलब 5-5 दोस्त साथ में बैठ के सिर्फ बोल रहे हैं कि यार तू अच्छा नहीं लग रहा है. इन द सेंस कि इवन द गाय इज फिट, यू विल मेक हिम फील कि हाँ भाई तेरी बॉडी अब कल ज़्यादा शेप में थी, आज नहीं है. बट वो जो खुद इंसान है वो जिम जाता ही नहीं है, बट ही हैज़ ऑल द राइट टू टेल हिम, मेक हिम फील कि भाई तू ज़्यादा शेप में नहीं लग रहा है. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, आप किसी पे एक उंगली उठाने से पहले आपकी 3 उंगलियां आपके ऊपर हैं कि आप पहले खुद का काम करो. खुद का काम करो. एंड लाइक आई सेड कि बॉडी बिल्डिंग इज नॉट easy guys. Starting from, it takes a lot of courage, it takes a lot of time. आपकी लाइफ में भाई कुछ भी चल रहा होगा, बट यू कैन नॉट डिनाई दैट यू हैव टू ईट दिस मील. आपको ये खाना इस टाइम खाना है, आपको इस टाइम जिम जाना है, आपको 2 बार वर्कआउट करना है. और प्लस आपकी फैमिली इश्यूज हैं और सबकी लाइफ में इश्यूज हैं. ये नहीं कि भाई जो बॉडी बिल्डर है सबसे ज़्यादा शेप में है, यू कैन टेक एनीबडीज नेम, बट हर किसी की लाइफ में इश्यूज हैं. बट आई थिंक this when you enter the gym, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ. So what I'm trying to tell you is also, before you start your day, अगर आप उसके 1 घंटा पहले जिम में या अपने घर में, लॉकडाउन में हम, आई थिंक जब जिम नहीं थे तो यू प्रॉब्ली वर डूइंग एट योर प्लेस. मेरे घर में सीढ़ियाँ थी तो मैं 10 बार ऊपर नीचे कर रहा था. लाइक आई सेड कि आई वाज फाइंडिंग अ रीजन. करेक्ट. यू नीड टू फाइंड अ रीजन फॉर योरसेल्फ, नॉट कि आप अच्छे दिख रहे हो नहीं दिख रहे हो, डजंट मैटर ब्रो. I'm telling you to be healthy from mind as well. You're healthy inside, but आपका mental health, because the industry I am in, there's a lot of people in a race, in a race की I am looking good, I am better, he's doing this. मैं एक तो लोगों के साथ बहुत उठना बैठना बहुत कम रखता हूँ, because I know, I believe in myself, I know I am the best. That's it. मुझे कोई आके बोले तू कम ज्यादा है, I don't give somebody a reason to come and tell me कि Asim you're doing less or more. No, I have given nobody that right. I give myself my right. Asim, okay, you don't want to work out, it's okay, but I know
मुझे पता है कि मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, तो कंसिस्टेंसी किसी भी चीज़ में, इवन आप लोग इस फील्ड में जर्नलिस्ट बने, बट आपने पिछले 10 साल 5 साल दिए, मैंने अपनी इंडस्ट्री में 10 साल दिए, फिर जाके कुछ हुआ। तो हर चीज़ टाइम लेती है, डॉक्टर, इंजीनियर, एनीबॉडी। सो इट्स द कंसिस्टेंसी, बट उसके पहले एक बिलीफ आता है, एक सेल्फ रिस्पेक्ट आती है, एक आता है कि हाँ मुझे अच्छा दिखना है। आई कैन, इफ आई वोंट लुक गुड इफ आई हैव 20 kgs मोर राइट नाउ, राइट? Right. एग्जैक्टली राइट, बट आई लुक गुड। ये मेरा एक टास्क है रोज का, बट मुझे ये पसंद नहीं है, बट आई लव टू डू इट। यू नो व्हाट आई मीन? Absolutely. और इस दुनिया में आज जो हो रहा है, व्हाट इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज वर्क ऑन योरसेल्फ, बिकॉज एवरीबडी इज ट्राइंग टू पुट यू डाउन। You know, अभी 4 दोस्त, मैं बोल रहा हूँ ना, इवन इट्स माई फ्रेंड्स और माई कजन्स, आसिम ये वाली ऐड अच्छी थी, वो ज्यादा अच्छी थी। I'm like, try to understand, तेरी बॉडी उस वाली पिक्चर में अच्छी थी, इसमें कम है। तो वो लोगों को मैंने राइट ही नहीं दिया है, दे सी मी लाइक दिस। सो वही मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि सराउंड योर सेल्फ जो आपको मोटिवेट करें, सराउंड योर सेल्फ, आप उन लोगों से मिलो जो आपको देख के आपकी उनकी आंखों में स्पार्क है कि हाँ भाई ये मेरा दोस्त है, Right. इसके लिए मैं अच्छा करूं। उनसे मत मिलो कि बिकॉज यू आर अलोन। ब्रो, इस दुनिया में अब अकेले आए हो, एट द एंड इट्स माँ बाप के लिए जो कर सकते हो करो, दैट्स इट। डोंट प्रूव इट टू योर फ्रेंड्स, रिलेशन, कजन, ब्रदर, फॉरगेट इट, इट्स द पेरेंट्स। You know, why I'm doing everyday hard work is I want to look back कि हाँ भाई, you know, कि मेरे माँ बाप के लिए मैं कुछ करके जाऊं। Right. You know, वो मुझे बोल भी नहीं रहे हैं, but that self respect, that belief। तो फिटनेस, मुझे लगता है कि फिटनेस का पॉजिटिव इफेक्ट ये है कि I am so focused in my life। Absolutely. तो वही मेरा एक यहाँ पे आने का एक मेन रीजन है कि फिटनेस का ये मतलब नहीं है, जिम जाने का ये मतलब नहीं है आपको स्टेज पे ही उतरना है। इसका मतलब ये नहीं है गाइस, इट्स अबाउट बीइंग फिट मेंटली। यू नो व्हाई एवरीबडी यू गो अब्रॉड कि कुछ सब भाग रहे हैं, यू डोंट नो देम, कोई फेमस नहीं है वहां पे ब्रो, जस्ट बिकॉज ये फॉरेनर्स, हाँ भाई, it doesn't work like that। Right. Everybody is running because for their mental health। So I want to give a message to everybody, even who are sitting right now here, ki start with step 1, running, easy, relax, you know, everything is possible। अगर मेरे साथ, you know, my life changed, मतलब मैंने इसका dream किया था, you need to dream big and Absolutely. believe, that's it, everything is gonna happen bro, you know। Thank you। Thank you so much, Asim sir. And the way he conveyed all the messages to everyone out here, I'm sure you guys have learned a lot on how to believe in yourself. And the most important part, After this, everybody goes out for a run। Go home running। right? Walk, please, you know। Absolutely. Thank you so much, Asim sir. So I have few questions for Vindu sir as well. Sir, you are one of the inspirations for the youth, and also we have known you from the legendary Dara Singh sir as well. And I would like to ask you कि sir आपको inspiration कहाँ से मिला? I'm sure Dara Singh sir was one, but other than that आपको ऐसा लगा कि यार मेरे में pressure है कि my dad is someone who is a legend. What they remember. तो this is it. आपको समझना पड़ेगा कि मेरे फादर जब हम पैदा हुए हैं तब से उनकी बॉडी देख रहे हैं, and he was so strong and so huge। तो जैसे हम गल्फ की शूटिंग कर रहे थे, साथ में थे भाई सलमान भाई की जो बॉडी इनने बनाई थी, वो वैसी बॉडी हमने कभी नहीं देखी। तो दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू गेट राइट गाइडेंस। तो हमारे फादर को हम बोलते, मैं बहुत पतला बच्चा था, ये भी बहुत पतले थे, अच्छा। मैं बचपन में बहुत पतला था। तो लोग जब मैं जाके किसी को बोलता मैं दारा सिंह का बेटा हूं, तो लोग हंसते थे, झूठ बोल रहा है सारे, हट। तो आई वाज वेरी एम्बैरेस्ड। आई वुड कम एंड टेल माय फादर कि यार आपका बच्चा पैदा होकर मेरी बैड लक है, यानी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि लोग मानते ही नहीं। तो दे सेड नहीं बिंदु 8th स्टैंडर्ड तक वेट कर ले। और 8th स्टैंडर्ड की छुट्टियां जैसे ही 7th खत्म की, तो मैं गया, मैं कहा बताओ, तो बोला आजा, दंड मार, आज 10 कल 12 परसों 15, 250 मारने छुट्टियों तक, एंड तक, और बैठक मार 250 मारने, और पुल अप कर। ये स्टार्ट है बेस। माय गॉड। ये तूने जब कर दिया, उसके बाद तू जिम जाना, जिंदगी भर वो बॉडी रहेगी। एंड एक्चुअली आज तक वो बॉडी, जब मैं जिम जाता हूँ 2000 दिन वापस ठीक हो जाती है, जब ये हनुमान जी का कुछ काम करना तो वापस ठीक हो जाती है। तो दिस इज हाउ इट इज कि आप लोग अपने बच्चों को, जैसे वो उनकी हाइट पूरी हो जाए, तो प्लीज स्टार्ट देम ऑफ फ्री हैंड एक्सरसाइज, और फिर जिम जाओ, और फिर ऐसे महारथियों के पास जाओ, जो भी है, पर अपनी बॉडी का ख्याल रखो। तो डैड की बॉडी देख के हम लोग की बॉडी भी उसी लिए बनी है। आज 57 हो गए हैं, लेकिन अभी भी लगता है कि साला हम तो 20 साल के हैं। दिस इज हाउ इट इज। जिसकी हेल्थ फिट होगी
वो कभी भी अपने आप को बुढ़ा नहीं समझेगा। हाँ, never तो gets लोग बोल old, रहे, अरे never यार gets तू तो old. 57 हो गया। अरे 57 क्या, मैं तो माय हार्ट इज 18 till I die. तो ये Superb, superb. Come on, everyone, give it up for Windu sir. Lovely dose of inspiration for all of you. And I guess काफी सवाल जवाब हमारे पास और भी हैं. But I would like to ask all the people, those who are present here, you may go ahead with your questions for Mass Parel Shri 2022. Fourth edition is open and the questions are open. सो देर आर सो मेनी किड्स यंग एज की बात करो 18 से जो जिम जाते हैं वो लोग दे टेक प्रोटीन सो व्हाट डू यू वांट टू से एंड व्हाट डू यू वांट टू सजेस्ट टू द यंग पीपल हु स्टार्ट टेकिंग प्रोटीन एज अ फर्स्ट लेवल सर Yeah, the question is for द क्वेश्चन इज फॉर Asim sir. Asim sir. Sir, what was the question? Please repeat it, please. Thank you. So my question is, nowadays the young people who start gymming at the first level, when we talk about root level, so they start taking protein at the first stage. Okay. So what do you want to say to those people who start taking protein at the first level? Okay, protein is something is necessity of the part of bodybuilding. But what kind of protein you're taking? I'm the guy who takes a lot of eggs, a lot of chicken. You know, depends. Agar insan veg hai, non-veg hai, there's a lot of things. I don't tell you don't take protein supplements because at the end it's your choice. Take it a right supplement. That's my main concern. Take protein. After 18, you can take all the protein supplements. ठीक है? But now the thing is, it's the protein. कौन सा protein ले रहे हो आप? So protein लेने में कोई harm नहीं है, bro. It's the right amount to ask people like you know कि आप पूछें कि भाई कितना protein चाहिए. Education इसमें बहुत important है. You know what I mean? If your body is 70 kg, you need like 140, 30 grams of protein, right, sir? So आपको पूछना पड़ेगा. मैं आज तक पूछ रहा हूँ. अभी मैं सर से मिला, मैंने कहा सर आप वली में ट्रेन करते हो, मेरे को भी आके ट्रेन करना है. You have to ask. इसमें आप छोटे नहीं पड़ोगे कि यार मैंने इससे पूछ लिया. मैं आज तक कोई जिम में मेरे से कोई अच्छी एक्सरसाइज करता है, बोलता हूँ I like the way you doing this. Can you guide me? जब आप इंसान पूछेगा तो भाई आपको तीसरा हाथ आएगा, हाँ भाई तू आगे बढ़. ऐसे कुछ नहीं होगा. सो आंसर टू योर क्वेश्चन इज इट्स नो हार्म टेकिंग प्रोटीन. हाँ हाँ, after 18, like I said, after 18 you take it, but take it which protein brand really is important, because a lot of people just selling protein because they're doing business. I don't want them earning money on somebody's health. बिकॉज यहाँ हेल्थ, लाइक आई सेड कि हेल्थ बहुत ज़रूरी एक चीज़ है. तो हमारा मेन कंसर्न यहाँ हेल्थ है. तो अगर जो इंसान स्टार्ट कर रहा है, मैं उनको सजेस्ट करूँगा, एक मैसेज भेजूंगा कि पहले आप एग्स और चिकन से स्टार्ट करो. अगर आप वेज हो तो टोफू है, देयर इज ब्रोकली, देयर इज सो मच दैट यू आई थिंक a legal age for my mind is 2023 that you should actually start taking protein supplements. But अब किसी को necessity है कि he has a goal कि उसको 22-23 तक एक stage पे चढ़ना है, then I can't tell him. But a good brand will take him the way he wants to be. That's it. Yeah. Thank you. Okay, so there are so many proteins, like we say Indian brands are there, foreign brands are there. Let's concentrate on Indian brand. When we talk about Indian brand, there are so many 75 to 80% are duplicates. Yes. So what we need to do, like at the young age, if there are college students who start doing gym, so they prefer Indian brands or foreign brands? See, देखो इंडियन भी अच्छा है, फॉरेन भी अच्छा है. मैंने आपको बोला कि पूछ के लो. Asking is the main thing. You have to ask your gym trainer, ask your father, ask somebody who's into this business. अब मेरे कज़न को मॉडलिंग करनी थी, उसने मेरे को फ़ोन किया. उसने अपने किसी को, अपने डैडी को नहीं पूछा, उसके डैडी कुछ इंजीनियर हैं. He will ask me, हाँ आसिम मुझे मॉडलिंग कैसे करनी है, आसिम मुझे सिक्स पैक कैसे बनाने हैं. तो he needs to ask somebody जिसके पास एक्सपीरियंस है. वो उसको बोलेगा अच्छा तेरे को भी प्रोटीन की जरूरत नहीं, तू अंडे और चिकन से काम चला ले, या तू वेज है तू टोफू खा ले, या तू ब्रोकली खा ले. तो आस्किंग इज समथिंग, इट्स द फर्स्ट स्टेप टू गेट इनटू दिस बिजनेस कि पहले आप पूछो कि करना क्या है इसमें, होती कैसी चीजें हैं. You know, so the lack of education is something we are facing in the youth, because they are looking at somebody who's already into this business. 3-4 साल से वो बॉडी बना रहा है और उसको देख रहे हैं मुझे ऐसा बनना है 1 महीने में, 6 महीने में, 1 महीने में. Doesn't work like that. Thank you. Hi, Shadma this side from Home Bollywood. Well, my question will be from Bindu sir and Deepak ji.
The question is, when it comes to health and fitness, the young generation are more into gym, and my personal experience is where I have heard 2 or 3 people who died because of overdoing the gym. So these days there are youth who believe that हम ज़्यादा जिम करेंगे तो हमारी बॉडी उतनी ज़्यादा बिल्डअप होगी एंड वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा. Well, in such case, what do you want to advise that people? See, I don't think anybody's ever died due to the gym. लेकिन क्या होता है कि बॉडी में कुछ कॉम्प्लिकेशन हो, स्पेशली आजकल जो कोविड के टाइम में मास्क पहन के लोगों ने भागे हैं, बहुत जिम किया है मास्क पहन के, दैट इज डेंजरस अकॉर्डिंग टू मी. बिकॉज हाँ, रनिंग कोई मास्क पहन के भाग रहा है और वो गिर गया तो इट्स गोइंग टू हैपन, बिकॉज बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए. लेकिन जिम का कोई टाइमिंग जो है, जैसे हमारे जैसे लोग जिम जाते हैं वो पौना घंटा, 1 घंटा, सवा घंटे के अंदर आ जाते हैं, लेकिन इनके जैसे लोगों को के लिए वो बहुत कम टाइम है. मैं बच्चा था, तलवरकर सर हमें लेके जाते थे जू बीच, बोलते 3 अंडे डालो टिफिन में, 5 बजे 6 बजे उठ के, और हम लोग वहाँ एक्सरसाइज करते थे, फिर वो हमें अंडे खिलाते थे. तो बेस बचपन से ही होता है, तुम्हें इसकी नॉलेज बचपन से आ जाती है. लेकिन आई डोंट थिंक एनीबडी इज एवर डाइड फ्रॉम डूइंग exercise. Heavy, बहुत ज़्यादा. Yeah, but if you're wearing a mask and doing exercise, you will die. So you have to be little careful. ये रूल तो बना देते हैं जो रूल बनाने वाले हैं, लेकिन बहुत चीजें हैं जो आपको सोचना पड़ता है. मुझे नहीं लगता कि जिम में कोई भी मरा होगा जिम की वजह से. आपको लगता है? वो डेफिनेटली. इफ यू हैव सम अदर डिजीज, कोविड में भी आई थिंक मोस्टली वही लोग मरे हैं जिनको थोड़ी और कुछ अलग अलग चीजें की बीमारी थी. जो फिट थे, आई डोंट थिंक सो उनको कुछ ज़्यादा फर्क पड़ा है. बट द पॉइंट इज कि अगर आपकी बॉडी आपको बताती है, सिग्नल देती है, हमेशा थोड़ा भी आपको सिग्नल आए कि you're not feeling up to it, you're not ready that day, rest. Immediately go back home. Hello, don't push it. ईगो में आके कि भाई ये इसने वो 200 उठाया तो मैं तो 225 उठाऊंगा ये आज, तो वो सब नहीं करना, फिर बैक भी जाएगी. तो ये क्या लगता है भाई? मेरे ख्याल से ये आंसर सर अच्छे से दे पाएंगे. अगर कोई डिसीज है तो वो प्रॉपर फिजिशियन या प्रॉपर ट्रेनर से एडवाइस लेके ही वर्कआउट करना चाहिए. अगर आपका एक्सेस हार्ट रेट हो रहा है ड्यूरिंग वर्कआउट तो कुछ भी हो सकता है. काफी सारे हार्ट अटैक उसके वजह से ही हुए हैं. Right. Yes. So Asim, my second question will be with you. Yes, So we have seen you and Umar as well. Both are into fitness so much. Right. And आप लोग कुछ मिस हो जाए चलेगा, बट आपका वर्कआउट जो है वो मिस नहीं होना चाहिए. तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, हु हैव इंस्पायर्ड, आप दोनों में से किसने किसको इंस्पायर्ड किया है रिगार्डिंग फिटनेस? My dad is 64 right now and he still goes to the gym. वो रोज जिम जाते हैं, आज भी सुबह. And literally my dad doesn't look like 64, he looks 44. And I'm telling you, तो वो consistency उनकी, वो हमने adapt की, you know. And being in this industry, आपको fit रहना है, आपको एक particular shape में दिखना है. And it's not a pressure they tell you, it's a part of being here. अगर आप वो कर सकते हो ठीक है, नहीं कर सकते हो कोई प्रेशर नहीं है. डोंट टेक फिटनेस एज अ प्रेशर. आई थिंक सर यहाँ प्रेशर ज़्यादा है फिटनेस को करने से पहले. तो इट इज़ नॉट अ प्रेशर, इट इज़ एंजॉय इट. एग्जैक्टली. जो मैं ब्राउन राइस या ब्रोकली वो खा रहा हूँ, आई लव टू ईट इट. मेरे को ये नहीं यार मैं क्या खा रहा हूँ, नहीं. मेरे को टास्क लगता है जब मैं कोई चीट मील खाता हूँ, यार नो आई डोंट लाइक टू ईट दिस. So it's answer to the question is कि I got the inspiration from my dad, but like I said, कि enjoy what you doing. Thank you. Anyone else? Yeah. एक टाइम था maybe around 30-35 years back, फिल्म इंडस्ट्री में जो पहलवान होते थे वो ज्यादातर विलन होते थे. इनफैक्ट लाइक मतलब कि जो मुस्टंडा या गुंडे लोग रहते हैं ज्यादा. हाँ, पर आज के लिए पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है कि if you want to look good and if you want to be a hero, if you want to be a model, you have to have a good physique. Like, how do you see that thing? विलन तो मोस्टली आउट हो गए, आजकल हीरो ही विलन में कर लेते हैं, याद रखना. तो द थिंग इज के पीपल हैव रियलाइज कि हीरो का क्या मतलब है. somebody you look up to. He has everything. Yeah, he has to have something supernatural. तो बॉडी इज द मेन थिंग. जिसकी बॉडी है वो वैसे ही एक ऑटोमेटिक, आज सारे बच्चों का हीरो टाइगर श्रॉफ है. तो वो क्यों है, आप कैलकुलेट कर लो कि क्यों है.
because they love his body, they love his dancing, gym, whatever, but the body is the main attraction. उसको भी मैंने देखा बचपन से ही शुरू हो गया था, जैसे ये पूछ रहा है, बचपन से ही टाइगर श्रॉफ बहुत मेहनत करता था, रोज आके हमारे को पूछता था कि भाई ये क्या वो क्या, हाँ कहा तू क्या पूछ रहा है हमको, लेकिन ही वाज सो डेडली एंड दैट्स व्हाई ही इज हियर. और तू जो दूसरा पूछ रहा था एक क्वेश्चन के भाई डुप्लीकेट, आई थिंक आजकल तो जितने भी ये सब स्पोर्ट्स के प्रोटीन आ गए हैं जो भी है उनमें कोई कुछ आता है, QR कोड आता है, तो वो कुछ भी डुप्लीकेट कुछ नहीं होता. हाँ, समथिंग लाइक दैट, समथिंग लाइक दैट. या सर अभी आप देखो सर, आपका ब्रांड है, अगर आपको कोई मॉडल चाहिए, यू डोंट वांट द मॉडल लुकिंग बैड, एंड बैड इन द सेंस कि यू वांट द मॉडल की आप किसी पे टी शर्ट पहनाओ वो फिट हो. लाइक आई सेड कि मैंने बोला ना, ये चीज प्रेशर में नहीं होगी. जस्ट बीइंग फिट इज समथिंग, अ कॉम्प्लीमेंट, आपकी अपनी एक एनहांस करता है आपकी इस बॉडी को, दैट्स इट. तो मॉडलिंग एक्टिंग रिक्वायर्स to be fit. Like if doctor engineer requires 9 years 10 years of study and then you become a doctor, to become a model you need to fit, that's it. Bottom line, there's no other question कि आपको क्यों फिट रहना. नहीं, अगर आप किसी भी फील्ड में आपको एक जॉब करनी है या फिर आपको पढ़ाई करनी है, तो मॉडलिंग में रैंप वॉक के लिए, कमर्शियल के लिए, यू हैव टू लुक गुड, योर जॉ नीड्स टू बी नाइस, योर एब्स, एवरीथिंग हैज टू बी प्रॉपर, you know. So there you go. Thank you. बिंदु सर, मेरा क्वेश्चन आपसे है कि अभी भी इंडिया में कुछ पेरेंट्स हैं जो कि अपने बच्चों को जिम नहीं जाने देते हैं. बोलते कि अगर आप जिम जाएंगे आपकी बॉडी खराब हो जाएगी, अगर आपने छोड़ दिया तो आप डबल मोटे हो जाओगे. तो आपके उससे क्या कहना है? ये बिल्कुल, ये ऐसी चीज़ें जो हैं जो बहुत सालों से उल्टी पुल्टी चीज़ें चलती आ रही हैं. लोग एक दूसरे को कुछ बोल देते हैं, तू ये करेगा तो मोटा हो जाएगा, छोड़ेगा तो, पर ऐसा कुछ नहीं होता. एक्चुअली तो खाना तो एब्सोल्युटली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है. हम हिंदुस्तानियों के खाने में जरा रोटियां परोंठे ये सब हैं, तो इसीलिए हम सबके पेट आने ही आने हैं. ये लोग के जैसे सब नहीं हो सकते जिनके पेट नहीं आते, पर हमारे आने हैं. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जिम जाना बहुत ही अच्छी बात है, और बच्चों को अगर आप जिम जाने से ही रोक रहे हो तो शायद आपने उस बच्चे को डॉक्टर ही बनाना है और कुछ नहीं है. तो पेरेंट्स का प्लान पहले से ही है, प्लीज डोंट थूसोफाई योर प्लान and your ambitions on your children. उनका एक अलग फ्यूचर है, खुद लिखवा के लाए हैं, उनने क्या करना है. पेरेंट्स का फर्ज बनता है कि बच्चों को उनकी ड्रीम फॉलो करने दें, ना कि अपनी ड्रीम उन पे थोपें. तो आई थिंक इफ ही वांट्स टू गो टू द जिम, प्लीज लेट हिम गो टू द जिम. असीम सर, आप क्या कहना चाहेंगे? You know, उन पेरेंट्स को ये बोलना चाहिए that you know you need to surround yourself with people to tell you, guide nicely, guide correct. Everything today everything is a vibe. एक एनर्जी पे सब, गॉड खुद एक एनर्जी है, ठीक है. एवरीथिंग इज एन एनर्जी, ठीक है. तो जो उन पेरेंट्स के आगे पीछे लोग हैं वो उनको गलत गाइड करें. जैसे मैंने आपको बोला, सराउंड योरसेल्फ पीपल हु नो, नॉलेज है जिनको. हम इसलिए यहाँ सारे बैठे हैं कि हमें इस चीज़ में एक्सपीरियंस है, नॉलेज है जो हमें स्प्रेड करनी है, बिकॉज हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं. यू नो व्हाट आई मीन. सो देयर यू गो. थैंक यू. दीपक सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? मेरे ख्याल से आसिम ने जो पॉइंट कवर किया, जैसे कि जिसके पास एक्सपीरियंस है, जैसे इनके भाई को जब मॉडलिंग में जाना था तो उनके भाई ने इनको ही फ़ोन दे के पूछा कि मुझे ये इस फील्ड में जाना है, तो जिसके पास एक्सपीरियंस है जिस फील्ड का, अगर उससे ही नॉलेज लिया जाए तो सबसे बेस्ट है. जैसे मुझे जब ट्रेनिंग स्टार्ट करनी थी, मैंने कभी लाइफ में वेट लिफ्टिंग की नहीं, तो मैंने गूगल किया, लोगों से पूछा किसके पास जाऊँ, तो मेरे पास घूम घूम के एक ही नाम आ रहा था, मनीष अडविलकर, जो सबसे बेस्ट है. सो मैंने बोला जब मनीष अडविलकर ही ट्रेनिंग लेगा मेरी अब, तो मैंने इनको ढूंढ के निकाला, फ़ोन किए इनको बहुत सारे. जब इनके साथ बैठा तो इनने मुझे बहुत सारी चीज़ें पूछी, फिर मुझे एग्जैक्टली समझ में आया कि वेट बड़े बड़े उठा के बॉडी नहीं बनती है. राइट गाइडेंस ज़रूरी है, टाइम देना ज़रूरी है, अपना डाइट भी इम्पॉर्टेंट है. और मैंने स्टार्ट किया, मुझे भी बहुत सारे फ्रेंड्स मिले थे, अरे तू इतना बड़े ट्रेनिंग में जा रहा है, तो कल छोड़ देगा तो बहुत मोटा हो जाएगा. मैं बोला यार थैंक यू सो मच. जैसे आसिम ने बोला कि जहाँ तक लिमिट में रखना है वहाँ तक ही लिमिट में, जो करना है वो हमको करना है. सो वही हिसाब से बस आपको राइट गाइडेंस चाहिए, सिंपल है. अभी भी कुछ लोग जिम जाते हैं, 2 घंटा जिम करते हैं, लेकिन वो कुछ डाइट भी फॉलो नहीं करते. वो बोलते हैं इसका जिम का कुछ असर भी नहीं हुआ, हमारा पैसा भी वेस्ट गया.
नहीं, ऐसे ऐसे लोगों को प्लीज कांटेक्ट करो मनीष अडविलकर सर के पास और ऐसे लोगों को बोलो कि आसिम जी को देखे। बॉडी जो है वो जिम में बनती नहीं, 90% आपके किचन में ही बनती है। आप जो खा रहे हैं वही आपको हेल्प करेगा। I think it's 100% workout and 100% diet. You know, मैं ये 70-30 में नहीं जाऊँगा, मैं 100% डाइट और 100% वर्कआउट। एंड ये जो लोग हैं, इनको इतनी जल्दी है लाइफ में, इनको बहुत जल्दी है, सो इनको बोलो जल्दी। ये एक ना टाइम टेबल पे आते हैं कि यार 20 दिन में 6 पैक, 20 दिन में ट्राइसेप, तो ऐसे नहीं चलता है। मतलब आज भी मैं सर, इफ आई करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि जो बंदा स्टेज पे चढ़ता है वो भी उस टाइम सोचता है यार मेरी ना ये डेफिनेशन रह गई, वो तब भी सेटिस्फाई नहीं होता है। तो बॉडी इज समथिंग यू विल बी नेवर सेटिस्फाइड, इट ऑलवेज ग्रोइंग ग्रोइंग ग्रोइंग। सर को इतना एक्सपीरियंस हो गया बट ही स्टिल सिटिंग एंड गाइडिंग, ही डजंट हैव टू बी हियर, बट वो आपको एक गाइडेंस दे रहे हैं कि भाई ये चीज है, दिस इज द असलियत। ठीक है, मैं आपको सच बताऊं तो जितने भी जिम हैं पूरे हिंदुस्तान में, वो सब का अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखोगे तो जिम ज्वाइन किया सपोज 1000 आदमी ने, वो 1000 आदमी 3-4 महीने तक तो रोज गए, और उसके बाद उसमें से 70% जिम जाना बंद कर देते हैं। तो ये आपको समझाता हूं मैं कि जब आप स्टार्ट करते हो एक्सरसाइज करना तो बहुत फास्ट आपकी बॉडी ट्रांसफॉर्म होती है और उसके बाद रुक जाती है, और वो रुक जाती है, और वो रुक जाती है, और वो रुक जाती है। तो आपको लगता है कि क्यों मेरी और नहीं बढ़ रही, और आप जिम छोड़ देते हो। पर अगर आपने उसको थोड़ा और धक्का मारा होता तो वो सोने के जैसे, हीरे के जैसे निखरना स्टार्ट होती। तो दिस इज द प्रॉब्लम इन इंडिया। लोगों को लगता है बस अब और नहीं बन रही मेरी बॉडी, और छोड़ देते हैं। तो वो जो नहीं छोड़ के आपने 2-4-6 महीने और लगा दिए, तब आपकी बॉडी बनना स्टार्ट होगी। इट्स नॉट सम मैजिक, इट इज हार्ड वर्क। Yeah, you have to understand, you have to understand कि भाई फिटनेस तो एक अलग ही चीज है। तो मैं बिलीव करता हूं कि जे वो सेलिब्रिटीज एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते और फिटनेस नहीं कर रहे तो शायद उससे पहले चले जाते। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड फिटनेस और एक्सरसाइज करने से कोई जाता नहीं है। या यू हैव टू अंडरस्टैंड कुछ ना कुछ उनकी बॉडी में रॉन्ग है, कुछ ना कुछ वो ले रहे होंगे जो सप्लीमेंट्स या कोई ड्रग विच इज नॉट गुड फॉर द बॉडी। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड ये बहुत ही साइंटिफिक काम है। तो इसमें आप किसी के बगैर, एक्सपर्ट के बगैर कुछ भी ट्राई कर लोगे, कोई भी बोलेगा भाई ये तो घोड़े का इंजेक्शन है तो इसको फिट कर देगा, ऐसे काम नहीं चलेंगे। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ये इंडस्ट्री में गुड भी है और बैड भी है। तो लोग पैसे बनाने के लिए कुछ बैड भी तुमको सप्लाई कर देते हैं। तो प्लीज स्टे अवे फ्रॉम दैट, स्टे अवे फ्रॉम एनीथिंग, जस्ट डू हार्ड वर्क एंड टेक गुड एडवाइस फ्रॉम द राइट काइंड ऑफ पीपल। आपको समझना पड़ेगा ड्रग्स कोई भी जो लेगा वो बुरी है। और ये मैं ड्रग कर रहा था, ये तो जो मैं बात करता वो तो स्पोर्ट्स की ड्रग है, दूसरी ड्रग तो जहर है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो तो आपको ऊपर ही पहुंचाएगी। तो अगर आप यानी यूथ जो लगता है कि भाई ड्रग लेना आजकल फैशन है, स्टाइल है, तो वो ठीक है, लेकिन फिर आप ये मत बोलना कि मैं 40 पे क्यों मर गया। ये भी याद रखना बात, 40-50 पे लुढ़क जाओगे। तो प्लीज बी केयरफुल, स्टे अवे फ्रॉम ड्रग्स, दैट इज अ डेफिनेट मैसेज। एंड स्पोर्ट्स ड्रग्स ऑल्सो डोंट इवन ट्राई टू टेक देम जस्ट ऑन योर ओन। जो भी है एक आई थिंक कोई भी जो भी होता है, कोई इंजेक्शन होते हैं, जो भी होता है, अगर आपने वो प्रोफेशनल जा रहे हो, बॉडी बिल्डिंग करनी है, कंपटीशन जीतना है, तो समझ में आता है। घर पे बैठ के आपने खाली एक्सरसाइज करके अपनी बॉडी बनानी है तो प्लीज डोंट टेक एनीथिंग। या इनसे पूछ के जो भी लेना है, जिम वालों से, एक्सपर्ट से पूछ के लो प्लीज। हमने कभी कुछ लिया नहीं क्योंकि हमारे टाइम पे था नहीं। जी हमारे टाइम पे ये सब होता तो मैं भी बैठ के फुल एक चीज करके, हमारा भी ज्यादा पैक आते हैं, अभी हमारे सिर्फ 2 पैक है। सर आई कीप इट वेरी शॉर्ट एंड सिंपल कि मौत जो है वो खुदा के हाथ में है फर्स्टली, ठीक है। और जो जैसे मैं बोल रहा हूँ कि गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। आप खुद सेल्फ मेडिकेशन इज़ रियली रॉन्ग, ठीक है। और जैसे आप बोल रहे हो कि लोगों के साथ ये हो रहा है वो हो रहा है,
लोग अपने आप को एक कम स्पेस में फील करते हैं कि अगर जिम में 10 लोगों की बहुत अच्छी बॉडी और 11वें लड़के की नहीं है तो उसको लगेगा यार, उसको वो वाइब ऐसी होगी यार मुझे ना बॉडी में कुछ डालना पड़ेगा, आई नीड टू लुक लाइक दैट. तो स्टॉप डूइंग दैट, बिकॉज उस बंदे की बॉडी अपनी मेहनत पे है और आपको पता नहीं वो कितनी कंसिस्टेंसी और कितनी एक डिसिप्लिन से चल रहा है. तो वर्ड फिटनेस में एक डिसिप्लिन बहुत बड़ा वर्ड है, बिकॉज यू हैव टू डू द सेम थिंग एवरी डे for years. मतलब मैं I am a big fan of Jay Cutler, Ronnie Coleman. अभी Ronnie Coleman has suffered through a back injury जहाँ उनकी बैक टूट चुकी है, but वो स्ट्रेचर पे अभी भी जिम जाते हैं and he has the same routine. Jay Cutler has the same routine since 20 years. Am I right, sir? So exactly. डेक्स्टर जैक्सन. तो मैं इन लोगों को देखे हैं कि वो उनकी बॉडी से मैं इंस्पायर हुआ, बट उनकी मैं रूटीन से बहुत इंस्पायर हुआ कि वो सेम चीज कर रहे हैं, वो खाना अपना बना रहे हैं, वो जिम जा रहे हैं, यू नो व्हाट आई मीन, खुद जा रहे हैं, नो ड्राइवर्स, दे ही इवन इफ ही हैज द बेस्ट कार, वो खुद कर रहे हैं. तो मुझे भी अपनी चीजें खुद करना पसंद है, बट गाइडेंस के अंडर. अभी भी मेरे पास ट्रेनर है, आई हैव अ ट्रेनर, यू नो व्हाट आई मीन. मुझे जरूरत नहीं है, बट मुझे है कि क्या पता मैं कुछ गलत कर दूं, तो मुझे पूछना है. यू नो अभी मैं सर से बैक स्टेज हम बात कर रहे थे कि आई वांट टू डू दिस एंड लाइक ओके लेट्स वर्क आउट. तो अभी भी मेरे पास आई एम 29, मेरे को 12 साल का एक्सपीरियंस है जिम की लाइफ में. मैं आई स्टार्टेड एट 17, यू नो. तो सिर्फ पूछ के आगे बढ़े हम. दैट्स द थिंग, यू हैव टू आस्क. देयर यू गो. थैंक यू. Thank you. अभी तो हम लोग जैसे कि क्रिकेट के इवेंट्स काफ़ी हैं हमारे. GT20 कनाडा का हम लोग ड्राफ्ट करते हैं, GT20 कनाडा है, फिर सोबो सुपरसोनिक्स मुंबई T20 लीग है. सो ऐसे काफ़ी इवेंट्स हैं हमारे. फिर अभी मेरे लिए तो फोकस सिर्फ परेल श्री है, और नेक्स्ट जो प्लेटफॉर्म पे मैं बैठा हूँ उसके लिए मैं सिर्फ मेरे दिमाग में यही चल रहा है कि अक्टूबर नवंबर में कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसमें आसिम से क्या सवाल आएंगे और बिंदु जी से क्या सवाल आएंगे. मैं उसकी प्लानिंग में बैठ गया हूँ अभी. सो मेरे लिए फोकस अभी फिलहाल परेल श्री है, मासी है. यस. Thank you so much, all the media persons. Thank you so much for all the panelists, those who are here. Give it up for them. Come on, everyone. Thank you. You know what exactly can be drawn from the kind of advices these people have given is that, you know, there has been an incident in my life, sir. मेरे life में एक incident हुआ था 4 साल पहले. I started gymming first time. मैंने सोचा कि मुझे gym करना चाहिए, because in this profession also we need it. So I went to the gym and there was this guy who didn't see me before. तो उन्होंने मुझसे पूछा पहले आए हो. तो मुझे लगा पहले आए हो का मतलब कि पहले इस जिम में आए हो क्या, रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा चुका है कि नहीं. और मैंने उनको कह दिया हाँ आया हूँ. तो उनको लगा कि मैंने पहले जिम किया हुआ है, और उन्होंने मुझे पहले दिन ही 2-3 चीजें करवा दी. बस उसके बाद से मैं आज तक जिम नहीं जा पाया. सो इसका रीजन, मतलब मैंने ये इंसिडेंट इसलिए बताया बिकॉज जो इन्होंने कहा है कि गाइडेंस बहुत जरूरी है, करेक्ट पर्सन बहुत जरूरी है. आसिम सर एंड विंदु सर, आई हैव जस्ट अ स्मॉल रिक्वेस्ट टू बोथ ऑफ यू कि हमारा जो मास परेल श्री 2022 होने वाला है, पार्टिसिपेंट्स बहुत सारे होने वाले हैं, बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स आने वाले हैं अपना टैलेंट शोकेस करने के लिए. सो आई जस्ट वांट यू बोथ टू प्लीज गिव योर बेस्ट विशेस टू देम इन योर वे. टेकिंग द माइक, या एनीथिंग यू वांट टू से, एनी मंत्रा और एनीथिंग. या Guys, just firstly, pain is gain. Remember, bro. In fitness, अगर आप जिम जा रहे हो, आपको मसल में पेन नहीं हो रहा, it means you're not growing at all. So trust me, after जो भी मेरी जिम की लाइफ रह चुकी है अभी तक, मुझे स्टिल, मैं कभी जब ज़्यादा वर्कआउट करता हूँ तो स्टिल मेरे को पेन होता है. सो पेन इज गेन. एंड कमिंग टू द परेल श्री जो सारे कंटेस्टेंट हैं, आई वांट टू कंग्रेचुलेट यू गाइस बिकॉज यू हैव ऑलरेडी वन फॉर मी एंड फॉर एवरीबॉडी, बिकॉज ये जो स्टेज तक पहुँचना ही एक अपने आप में कामयाबी है. So I wish you all the best. God bless you guys. Thank you. मास परेल श्री 2022 में जितने भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको हम सबकी तरफ से बेस्ट ऑफ लक. ये इवेंट टेलीवाइज होने वाला है, टेलीवाइज, तो टीवी में भी देखने को मिलेगा, तो हम सब घर बैठ के भी देख सकते हैं इसे. एंड दैट इज ऑसम. Well done to the TV channel which is going to sponsor and get this on board. I hope lots and lots of ads come in because body है तो ही health है तो ही सब कुछ है, इसके बगैर कुछ नहीं है. Well done. Thank you so much all the panelists, Manish sir, Deepak sir, Asim sir, Vindu sir and Ajay sir. A small photo. As we close the house for questions, I would once again like to
तू ही आगे मैं पीछे जा रहा हूँ लाइट काट दिया तुम लोग लाइट काट दिया गर्मी हो रही है क्या? आई मीन टू से अगर देखो इनके तरह आई डोंट नो शर्टलेस दिखने चाहिए भाई, सब दिखने चाहिए। थोड़ा पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, तभी आएंगे सब। थोड़ा पीछे दिखने चाहिए। लाइट ही नहीं मिल रहा यार भाई आसिफ की भी बॉडी ऐसी है, इसको भी डाल दो, इसको ऐसी है भाई। तभी मैंने बिग बॉस में वेट करते थे, ये तो शर्ट निकालेगा। थैंक यू। Yes, we have gift hampers from Pictola and Velvet. Guests out there. सब तैयार है, लगता है शॉर्ट नहीं खाया एक दो दिन से। हाँ? दो दिन से नहीं, 6 तारीख को है ना, आपके लिए। बॉडी फोटो समीरला बोलो ना, समीर या लवकर थैंक यू सर। किधर करो उधर ही षणमुखानंद सर, बड़ा कर दिया आपको समझना पड़ेगा, बॉडी बिल्डिंग मत उसको बोलो, बराबर है। बॉडी को मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, उससे इम्पोर्टेंट कुछ नहीं। हेल्थ इज वेल्थ, और आपकी बॉडी ही सबसे महंगी कीमती चीज़ है जो आप कभी ज़िंदगी में ओन करोगे। कुछ उसके सामने नहीं है, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ नहीं है तो सारा दुनिया का पैसा धरा का धरा रह जाएगा, कुछ मज़ा नहीं आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट कि अपनी बॉडी का ख्याल रखो, उसको मतलब उसे निखारो, उसे और सुंदर बनाओ जितना हो सके। अगर आपको दिख रहा है कि आपकी हाइट नहीं बढ़ने वाली, तो आप ये जल्दी इसके बारे में सोच लो। 11-12 की उम्र में पुलअप करना स्टार्ट कर दो, 2-3 इंच एक्स्ट्रा बढ़ जाओगे। स्विमिंग कर लो, साइकिलिंग कर लो, ये सब चीज़ें इंडिया के लोगों को सिखानी बहुत ज़रूरी है। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं, राइट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो आई एम श्योर कि लोगों को अब समझ में आते जा रहा है सोशल मीडिया के थ्रू। हम भी इंस्टाग्राम पे कुछ ना कुछ ऐसा लोगों को सिखाते रहते हैं। तो बाकी ये सब रियल बॉडी बिल्डर्स हैं, तो दे आल्सो फैंटास्टिक बॉडी बिल्डर। कौन गाइड करता है आपके बॉडी बनाने में? किसने आपसे बचपन से गाइड किया? हमें तो हमारे फादर ने गाइड किया है। तलवारकर अंकल होते थे, जब मैं जिम जाता था तो उनके जिम जाता था, तो उनने भी गाइड किया है, उनकी ट्रेनर्स ने गाइड किया है। लेकिन मेरे फादर ने जो गाइड किया था वो सबसे बेस्ट था, क्योंकि मैं उनके घर में पैदा हुआ। तो हमारे जब आप स्टार्ट करते हो यंग एज में, 8th स्टैंडर्ड के आसपास आपको स्टार्ट करना चाहिए एक्सरसाइज, लड़कों को लड़कियों को। और आपको स्टार्ट करना चाहिए फ्री हैंड्स। सीधा जिम नहीं जाना, कभी मत जाना सीधा जिम, पहले फ्री हैंड करना। और जब जिम भी अगर आप ज्वाइन करोगे तो जिम में भी पहले फ्री हैंड ज़्यादा करना, तो वो बॉडी ज़िंदगी भर रहेगी और जाएगी नहीं। दूसरी बॉडी अगर आप जिम की बनाओगे डायरेक्ट, तो बहुत फास्ट चले जाएगी। जैसे आपने जिम छोड़ा, बॉडी गई, तो आपको दुख होगा। लेकिन अगर आपने फ्री हैंड कर लिया तो वो बॉडी ज़िंदगी भर नहीं जाएगी। सो सर, एज यू केम विद अ बैकग्राउंड, जो बचपन से आपको जिम के लिए इंस्पायर किया, आपके डैड इंस्पायर किया, हु हैज बीन अराउंड दिस इंडस्ट्री, सो वाज इट डिफिकल्ट फॉर यू एट दिस यंग एज, और इट वाज अ चैलेंजिंग फॉर इट यू? इज़ सो मच फन, इट इज़ सो मच फन। जब आप एक्सरसाइज करते हो और स्टार्ट करते हो, और जब आपकी बॉडी ट्रांसफॉर्म होने लगती है, तो आपको लगता है कि आपने बहुत बड़ी चीज़ अचीव कर ली। तो मैं पतला सा हड्डियों का ढांचा, और जब मैं थोड़े से डंड मारते मारते जब वो बॉडी निखरने लगती थी,
आपको बताऊं, मैं 8th स्टैंडर्ड तक एवरी टाइम स्कूल में रोता था, बच्चे लोग मेरे को बुली करते थे और मुझे लगता था यार कि क्या है, क्योंकि लोग बोलते धारा सिंह बेटा रो, और मुझे बहुत रोना आता था। तो मैं डैड को आके रोता रहता था कि ये क्या है क्या है क्या है। उन्होंने कहा 8th के बाद, जब तक मैं 10th पहुंचा, मैं सबसे स्ट्रॉन्ग लड़का था पूरे स्कूल में। जब मैं 11th स्टैंडर्ड में मीठी बाई कॉलेज गया तो पूरे कॉलेज में 5 साल आगे के भी बच्चों से स्ट्रॉन्ग थे। तो ये होती है एक्सरसाइज और ये होता है मज़ा उसका। तो थोड़ा सा गुंडागिरी की हमने, वो गलत है, वो नहीं करना चाहिए। जिसके पास ताकत आ जाए उसको बिल्कुल दूसरे को नहीं मारना चाहिए, कभी नहीं। सर तो गुंडागर्दी में कभी किसी को मारा कि बहुत मारा है, बहुत मारा है, बहुत लोगों को मारा है, बहुत गलत किया है काम, लेकिन वो नहीं करना चाहिए था। अब रियलाइज़ होता है। गर्लफ्रेंड के लिए मारा क्या? नहीं, कभी किसी ने कोई लड़की को छेड़ दिया तो उसको मारा, कभी कुछ उसको मारा, तो काफ़ी तलवारें निकली हैं हमारे टाइम पे। वो टाइम पे चलता था। आजकल सोशल मीडिया कुछ नहीं हो सकता, एक ही दिन में पूरे इंडिया को पता चल जाएगा। सर एंडामॉल की बात करूँ तो एक नया शो आया लॉकअप, जिसमें आपके अच्छे दोस्त भी गए, क्या कुछ कहना चाहोगे उस शो के? नहीं, बहुत अच्छा है, आपको समझना पड़ेगा, काम सबका चलते रहना चाहिए। और ये शो कुछ अलग ही है, MX प्लेयर बहुत बढ़िया है, आश्रम उस पर आता है, बहुत सुपर शोज आते हैं, तो इट्स वंडरफुल एंड आई एम वेरी हैप्पी। आप जेलर बन के जाएंगे? आप जेलर मैं पक्का जाऊंगा जेलर बनने। सर हाउ डू यू सी कंगना मैम एज अ? Oh, she's wonderful. She's wonderful. She's doing a good job. तो कंगना मतलब कुछ भी बोलती है तो वैसे ही वो न्यूज़ बन जाती है और मज़ा आता है, चाहे वो सीधा बोले चाहे उल्टा बोले। तो जो भी कंगना, बिग बॉस और लॉकअप में डिफरेंस है कि बिग बॉस में आपको कोई भी इंसान की शक्ल नहीं दिखती, लॉकअप में आपको एटलीस्ट वो जेल वेल में खड़े हुए गार्ड तो दिखते हैं। ठीक है, चलो। ज़्यादा है बिग बॉस में।